لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہمیں قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں لوگ، ہماری بد دعا لگتی ہے، پھر اگر وہ ناچتا بھی ہے تو لوگ اس کو پیسے نہیں دیتے اس وجہ سے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ہم بھی کس سے کم نہیں ہے، ہم بھی اسی اللہ کے مخلوق کے بندے ہیں۔ ہم تو مجبور ہوتے ہیں، ہم اگر یہ کرتے ہیں تو جسٹ فار منی، ہر آدمی کے ساتھ تو نہیں ملنا چاہتے ہیں۔ میرے اوپر جوانی تھی، مطلب میں خوب پیسہ کماتا۔ مزید جاننے کے لیے اینڈ تک دیکھیں، اگر نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ دیویا سے بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور کیسے سالو ہو سکتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کے نظروں میں جو ہے نا کہ بدنام ہوتے ہیں، ہم تو لوگ جو ہے نا قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ ہمارا اتنا قصور نہیں ہوتا ہے جتنا جو ہے نا کہ ان لوگوں کا یا ان لڑکوں کا یا ان آدمیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اگر اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو کسی کے گھر نہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، حالانکہ وہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہمیں قصوروار بھی ٹھہراتے ہیں لوگ کہ معاشرہ آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہے یا لوگوں کو آپ لوگوں نے زیادہ تر بگاڑ دیا ہے، حالانکہ وہ خود آتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، تو آپ ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ہم اگر کرتے ہیں تو مجبوراً کرتے ہیں، زیادہ تر کوشش کی جائے کہ مطلب ان سے بچا جائے۔ لوگوں کو چاہیے، مطلب معاشرے کے چاہیے کہ ہماری جو ہے نا اس طرح مدد کی جائے، اگر کوئی کر سکتے یا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ چاہتے ہیں، ہماری اس طرح بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ کوئی آ کے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا مطلب سیکس کرے یا جو ہے نا کیا ایڈلٹری وغیرہ کے ساتھ۔ یعنی آپ کا یہ ہے خیال کہ غلط کام کرنے کے بجائے اگر ہماری مدد کر کے ہمیں پیسے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، مطلب ضروری تو نہیں ہے، لازمی تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو لوگ اس طرح بھی جو ہے نا کہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہماری وہ کیا ہے ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا کتنا قصور ہے اور لوگوں کا کتنا قصور ہے؟ ہم تو مجبور ہوتے ہیں، ہم اگر یہ کرتے ہیں تو جسٹ فار منی، جسٹ فار انکم، لیکن ہم سے بہت سے لوگ جو ہے نا کیا ہے مطلب ہمارے معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں، جتنے بھی حضرات ہوتے ہیں، وہ اگر ہم سے کہیں پہ بھی ملتے ہیں تو ہم سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اکیلے میں مل جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے، ان سے کنٹیکٹ نمبر لیں گے، تو مطلب ہے وہ ہمیں جو ہے نا کیا ہے ایک حساب سے ہوس کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم اگر کرتے ہیں تو یہ اس طرح تو نہیں کہ مطلب ہر ایک سے جو ہے نا کیا ہے ہماری بھی کچھ وہ ہوتے ہیں، مطلب خواہشات ہوتی ہے، ہم بھی اس طرح ہر آدمی کے ساتھ تو نہیں ملنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری باتیں، ہم اگر کسی سے بھی ملنا چاہیں گے یا چاہتے ہیں تو وہ جسٹ فار انکم یعنی پیسے کے لیے، کیونکہ ہمارے اس کے علاوہ یا ناچ گانے کے علاوہ جو ہے نا ہمارا کوئی اور وہ نہیں ہوتا ہے۔ جی، خواجہ سراؤ کمیونٹی پر یہ بھی ایک الزام عائد ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود اس طرف آتے ہیں، خود یہ راستہ چنتے ہیں، اس لیے آپ مستحق ہیں اس معاشرتی رویوں کے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹوٹلی غلط بات ہے، کوئی بھی مرد، کوئی بھی لڑکا یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اس طرف یا اس غلط راستے پر آ جاؤں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گی، ایک لڑکا ہے، وہ چاہے 16 یا 18 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے، ٹھیک ٹاک مرد ہے، ٹھیک ٹاک لڑکا ہے، تو کیا وہ یہ چاہے گا کہ مجھے موڑ لوں یا اپنی حجامت کر لوں یا لیڈیز فرقہ یا کپڑے پہنوں یا سب کے سامنے میدان میں آ جاؤں یا سب کے سامنے میں ناچوں؟ کوئی بھی مرد، کوئی بھی لڑکا ایسا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک روح ہوتا ہے، ہم بس شروع سے تو نہیں بلکہ بس جب ہم سمجھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، مطلب بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جو ہے نا کہ اور لڑکوں سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، ہم نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں۔ اچھا، معاشرتی رویوں پہ بات کریے، لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، کیا سلوک کرتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری بے عزتی نہ کی جائے، ہمارے پیچھے نہ چلایا جائے۔ زبان ہوتی ہے، ہم جسمانی طور پر کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ان کی طرح دوڑ سکتے ہیں، نہ ان کی طرح مار پیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، ہم بہت بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہاتھ سے جو ہے نا کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا، پہلے بدعاؤں کی کیا وہ ہے صورت حال جی کہ لوگ ہاں، آپ کی بدعا سے ڈرتے ہیں؟ ہماری بد دعا لگتی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ہمیں ستایا ہے، جنہوں نے جو ہے نا ہمیں ٹیسس مطلب اریٹیٹس کیا ہوا ہے، پہنچایا ہے، تکلیف پہنچایا یا ٹارچر کیا ہوا ہے۔ تو چند ہی سال کی بات ہے، مطلب آفٹر فیو ایئرس وی ہیو سین، ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا اچھا، اور آپ نے ایف ایس سی کر رکھا ہے، جاب ایف اے نہیں ایف اے کرتے، یہ بھی ایف اے الزام ہے کہ آپ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ
वैसे दूसरे इनकम सोर्स हमारा क्यों ज़्यादा है, नहीं? हम लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30 35 40 हज़ार दिया जाता है, नहीं वो नहीं बहुत कम है और ये काम ज़्यादा बात है। एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूंगी। जब मैं 15 साल की थी या 16 साल की थी तो उस टाइम जो है ना मेरा एक जॉबन था, मेरे ऊपर जवानी थी, मतलब मैं खूब पैसा कमाती थी। अगर मैं आप रक्स करते थे, डांस करते थे? जी हाँ, क्यों नहीं? तो मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, इन्हीं हाथों से मैंने लाखों रुपए गिने, लेकिन अब क्या फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें माशरे में जो है ना क्या इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। अभी अभी की बात है, अभी जो हमने रूम लिया हुआ है या जहाँ पर जो है ना हम रहते हैं ठहरते हैं, वो एक आम से कमरे होते हैं, लेकिन हमें जो है ना क्या ट्रिपल मतलब 3 गुना भी जो है ना क्या महंगे दिए जाते हैं। तो ये कहाँ का ये कहाँ अब लोग आपको कमज़ोर समझ के आपके साथ ये रवैये रखते हैं या मारपीट करते हैं या आपके से पैसे लेके चले जाते हैं? कमज़ोर? जी। क्या क्योंकि ख्वाजा उन सरा इतना कमज़ोर है? जी हाँ, वो इतना ही कमज़ोर होता है। हमारी हाँ सिर्फ ज़ुबान होती है। हम जिस्मानी तौर पर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, ना उनकी तरह दौड़ सकते हैं, ना उनकी तरह मार-पीट कर सकते हैं, क्योंकि हम डरते हैं, हम बहुत बेसहारा लोग होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी हाथ से जो है ना किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। बदुआओं की क्या वो है सूरत हाल जी कि लोग आपकी हाँ, बदुआ से डरते हैं? हमारी बद्दुआ लगती है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने जो है ना हमें टीसिस मतलब इरिटेट्स किया हुआ है, पहुँचाया है, तकलीफ़ पहुँचाई या टॉर्चर किया हुआ है। तो चंद ही साल की बात है, मतलब आफ्टर फ्यू ईयर्स वी हैव सीन, हम देख चुके हैं कि वो लोग जो है ना बहुत ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि हम लोग वैसे दूसरे इनकम सोर्स हमारा क्यों ज़्यादा है, नहीं? हम लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 30 35 40 हज़ार दिया जाता है, नहीं वो नहीं बहुत कम है और ये काम ज़्यादा बात है। एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल दूंगी। जब मैं 15 साल की थी या 16 साल की थी तो उस टाइम जो है ना मेरा एक जॉबन था, मेरे ऊपर जवानी थी, मतलब मैं खूब पैसा कमाती थी। अगर मैं आप रक्स करते थे, डांस करते थे? जी हाँ, क्यों नहीं? तो मैंने लाखों रुपए कमाए हैं, इन्हीं हाथों से मैंने लाखों रुपए गिने, लेकिन अब क्या फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें माशरे में जो है ना क्या इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। अभी अभी की बात है, अभी जो हमने रूम लिया हुआ है या जहाँ पर जो है ना हम रहते हैं ठहरते हैं, वो एक आम से कमरे होते हैं, लेकिन हमें जो है ना क्या ट्रिपल मतलब 3 गुना भी जो है ना क्या महंगे दिए जाते हैं। समझते हैं कि क्या आपको कोई मुतबादल रोज़गार दिया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं, मिल सकता है इससे। हम तो यही चाहते हैं कि हमें भी अपने माशरे में जो है ना क्या है और दूसरे लोगों की तरह जो है ना क्या है सोसाइटी में हमारा भी हक हो, हकूक़ हो, राइट्स हो। हमें भी जो है ना क्या है कोई अच्छी सी नौकरी की पेशकश हो जाए या नौकरी मिल जाए या काम काज मिल जाए, तो हम जो है ना क्या फंक्शंस पे जो है ना नहीं जाया करेंगे, नहीं करेंगे। आल तो कभी कभार जाया करेंगे, इस तरह नहीं कि बस जब तक हमारा प्रोग्राम ना हो या फंक्शंस ना हो या फिर वो क्या है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ना हो, मतलब तो हमारे हाथ जो है ना क्या है पैसा या इनकम वगैरह हमें नहीं मिलता है। अच्छा, आप इससे पहले हम अच्छी अच्छी जगहों पे काम भी कर चुके हैं, मतलब ये अच्छी अच्छी जगहों पे पोस्टों पे काम भी कर चुके हैं, लेकिन एज अ प्राइवेट हमें अगर हुकूमत से कोई अच्छा जॉब मिलता है या वो कोई प्राइवेट अच्छा जॉब मिलता है या एनजीओज़ की तरफ से जॉब मिलता है तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम कर लें। और नाच गाना जो है ना ये एक टाइम तक होता है, उम्र भर कोई ये नहीं बरकरार रख सकता है। हम करेंगे, मतलब अपने रूम के अंदर फिर करेंगे। जब भी बंदे का जो है ना क्या जवानी ख़त्म हो जाती है तो नाचना तो फिर भी ट्रांसजेंडर को आता है, लेकिन वो फिर फंक्शन में या मैदान में जो है ना क्या है नाचने के काबिल नहीं होता है, या फिर अगर वो नाचता भी है तो लोग उसको पैसे नहीं देते इस वजह से कि वो बूढ़ा हो चुका होता है, जी, जवानी उसकी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यही बात है कि हम कब तक जो है ना क्या ये अपने फील्ड को कंटिन्यू रखेंगे या कब तक जो है ना हम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हमें हुकूमत की तरफ से सपोर्ट किया जाए, हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। हम भी किससे कम नहीं है, क्यों नहीं? अगर वज़नी काम नहीं है तो बाकी और छोटे मोटे काम जो है या और आसान काम जो है वो तो हम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी बदल गई है मेरे ख्याल में कि नहीं? क्या तालीम आम हो गई है? क्या लोग पढ़ने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, कहाँ बदली हुई है। तालीम आम हो गया है के हिसाब से, लेकिन ख्वाजा सराओं के लिए नहीं। कुछ ख्वाजा सरा ऐसे होते हैं जो घरों से जो है ना क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। मेरी मिसाल ले, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ एक हद तक, लेकिन मैं मज़ीद अपनी तालीम को, एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकी बिकॉज़ ऑफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, घरेलू मामलात या वो क्या है अच्छा, आपने एफएससी तक पढ़ा तो किस एफ ए तरह तक से पढ़ा पढ़ा? मैंने। एफए तक पढ़ा तो किस
किस तरह से पढ़ा? बहुत मुश्किल सपोर्ट आपको कैसे मिली? और वो तो क्लास फेलोज आपके कोऑपरेटिव्स थे? नहीं, वो तो बस शुरू से जानते थे कि ये चीज़ है, मतलब क्लास में स्कूल में हमारी यही बेइज्जती होती थी। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो हम तो यहाँ स्कूल से जो है ना कि देर से निकलने की कोशिश करते थे या सबसे पहले निकलने की कोशिश करते थे, ताकि लोग या लड़के जो है ना हमारे पीछे ना पड़ जाए। तो इस तरह अक्सर हमारे साथ होता था। कुछ लोग जो है ना वो हमारे पीछे पे इस तरह पड़ जाते थे कि अल्लाह फ़लानी तो जा रही है, वो तो निकल रही है, आओ चले उसको छेड़ते हैं, उससे जो है ना क्या गपशप लगाते हैं। अच्छा, तो जब आपको लोग छेड़ते हैं तो क्या महसूस करते हैं, और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कि लोग आपको तंग ना करें? बहुत बेइज्जत समझते हैं हम लोग अपने आप को, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हम भी खफा होते हैं, हमारा दिल खफा होता है। ये गपशप जो है ना लोग हमसे इस तरह सीरियसली भी लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से भी लगा सकते हैं लेकिन उनका जो तरीका होता है गपशप लगाने का या छेड़ने का, वो कुछ ठीक नहीं होता है, हमें अच्छे नहीं लगता है। और जब डांस का और रक्स का वो सारी एक महफिल होती है, उसके बताएं तो उसमें किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके साथ? शुरू से तो अच्छे होते हैं जब हम किसी फंक्शन पे चले जाते हैं, लेकिन वापसी में जब हम वहाँ से आते हैं तो अगर उन फंक्शन वालों की तरफ से ये नहीं होता है, मतलब वो अगर हम ये नहीं चाहते कि मतलब ये सही सलामत अपनी जगह तक पहुँच जाए, अगर वो चाहते भी हैं तो उस महफ़िल में जो और लोग बैठे हुए होते हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है। उनकी ये कोशिश होती है कि वापसी में जाने से पहले जो है ना हम इनको रोकेंगे एक 2 घंटों के लिए, ये इनसे जो है ना फिर पैसे छीनेंगे या फिर जो है ना इनकी इज़्ज़त वगैरह के साथ जो है। अच्छा, जी। तो आप इसके लिए सिक्योरिटी क्या कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते आप अपने लिए कोई, क्योंकि आप लोग की आमदनी तो काफ़ी सारी होती है, तो गार्ड वगैरह नहीं रख सकते? नहीं, कहाँ तक जो है ना हम गार्ड्स को रखेंगे। पुलिस हमारी वो नहीं कर सकती है एक हिसाब से, गवर्नमेंट जो है ना हमारी वो नहीं कर सकती सिक्योरिटी नहीं। तो हम अगर अपने लिए गार्ड को रखेंगे तो गार्ड तो हमारे साथ जो है ना, हमारा जाना कभी कहाँ होते कभी कहाँ होते, दूर दूर तक होता है ना, देहातों में ज़्यादातर होता है। तो वहाँ पर जो है ना वही वाली बात कि वो एक होता है, हमारा गार्ड्स अगर हो भी हो तो वो एक होगा की शक्ल में जाते हैं ना, लेकिन ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं। हम अगर मिसाल के तौर पर आप अगर 5-6 हैं, पाँच आपको छः अगर हैं, 2 हैं, तो क्या आप उनका मुकाबला कर सकते हैं? क्यों नहीं, यूँ तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी खुसरा या कोई भी वो ऐसा नहीं चाहता है। पहले तो मैं नहीं चाहती हूँ, अगर मैं एक खुसरे की वो करूँगी, हिमायत करूँगी, उसको जो है ना क्या नहीं जाने दूंगी, तो फिर मुझे जो है ना क्या उलट वो किया जाएगा, नुकसान पहुँचाया जाएगा, मतलब मुझे जो है ना फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा ख़राब हो, मेरे बाल काटे जाएँ या मेरी बेइज्जती हो।